Hello and welcome everyone on my Arvind Geography Verse YouTube channel. Dear students, today we are going to study very important MCQ of periodic property and variation of the periodic table. Basically, this will include chapter first of chemistry. So, we are going to solve today all the important MCQs which are to be asked from this part. Okay. So, we'll start now. We'll start with the question number 1. Number of periods in a modern periodic table is. It is very simple question. It is asked the number of periods. So suppose this to be the periodic table. Okay, suppose this to be the periodic table. Then when we go toward the bottom, and this is vertical and horizontal columns are there, suppose. Okay, so this vertical column is referred to as group and this horizontal columns are referred to as period. So question is asked, number of period in the modern periodic table. Number of period in the modern periodic table are, see, 5 here and 2 here. This is equal to how much? 7. So the right option will be option B, that is, it is 7. Now question number 2, I will try to explain the reason also, so that you can get benefit from this for short answer also and reasoning also. So I will try my best to give you the exact reasons of the following also. Question number 2, metallic character in a group, metallic character dash in a group as we move from top to bottom. Means in a group, when we go down, metallic character increases or decreases. This is what it is asking. So as we move down, metallic character decreases, remains same, increases, unpredictable. So the right answer will be it increases. Metallic character increases. Now what is the basic reason why this metallic character increases? The basic reason is that as we move down the periodic table, the size of that particular group elements increases. नीचे बढ़ेंगे हम, साइज इनका बढ़ेगा. साइज बढ़ने की वजह से जो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. ओके, साइज इंक्रीज होगा, नीचे की तरफ जाएंगे आप, और साइज इंक्रीज होने से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी, जिससे कि इनका जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो भी बढ़ेगा. ओके, तो ये रीजन भी हो गया और मैंने इसको एक्सप्लेन किया. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मेटेलिक कैरेक्टर इन अ पीरियोडिक टेबल एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यानी मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में आप बताइए. जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, तो आप पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि बेसिकली अगर हम लेफ्ट साइड में बात करें, यहाँ मेटल्स हैं, बीच में मेटलॉइड्स हैं और किनारे पे क्या है, नॉन मेटल्स हैं. बोला है कि लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा आपका, तो सिंपल है कि ये डिक्रीज होगा, घटेगा. ओके, ऐसा क्यों है? देखें आप, जब हम बात करें पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स है ना राइट साइड में, इस साइड, इनकी टेंडेंसी है, दे हैव टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन, दे गिव इलेक्ट्रॉन. whereas when we talk about the metals, non metals at the, or the elements at the left side, they have tendency to take electron. okay, they have tendency to take electron. अब जो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना आप, उनको बोलते हो मेटल्स, और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनको आप क्या बोलते हो, नॉन मेटल्स. ओके, अब ये मेटल्स और नॉन मेटल्स हो गए. तो चूंकि आप पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन को लेने की जो टेंडेंसी है ना वो बढ़ेगी, इसलिए आप जितना जाएंगे लेफ्ट से राइट में मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा. आई होप रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड. ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड एंड डैश डाउन द ग्रुप. बोला है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो आप जब पीरियड में जा रहे हो तो उसमें तो बढ़ती है, लेकिन जब आप नीचे आ रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी आपको एक्सप्लेन करना है. ओके, फर्स्ट इंक्रीजेस, सेकेंड डिक्रीजेस, थर्ड रिमेन्स कांस्टेंट, अनप्रेडिक्टेबल. तो हमने पहले ही देखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जब आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी. क्यों? क्योंकि नीचे आने पे साइज ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस. क्या होता है, ये बढ़ता है,
जब साइज बढ़ेगा यानी नंबर ऑफ सेल्स ऐड होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड, देखें आप अक्रॉस द पीरियड यानी लेफ्ट से राइट जा रहे हो ना तो आप बढ़ेगा, लेकिन वही ऊपर से नीचे आएंगे आप तो इसमें क्या होगा, ये घटेगा, डिक्रीज होगा। आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एनर्जी नीडेड टू मूव और रिमूव an electron from a neutral isolated gaseous atom and convert it into positively charged gaseous ion is valency, electron affinity, electronegativity and ionization potential। so ये तो ionization potential का definition ही है, तो आई होप ये आपको समझ में आया, इसको आप ऐसे ही रटेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर डैश वैलेंसी, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ऑल ऑफ दिस। सो इसमें से जो सबसे इजी होगा वो होगा क्या, एटॉमिक नंबर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये सारे डेफिनेशंस हैं, ओके, लेकिन दिस आर वेरी इजी बट आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, ये इसमें खास है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कंप्राइजेस ऑफ विच ग्रुप, बोला है कि जो सबसे ज़्यादा जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक ना, उनमें मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कंप्राइजेस ऑफ विच ग्रुप, वो किस ग्रुप का होगा, ठीक है ना। ग्रुप में बात करेंगे 15, 16, 14 और 17, तो इसमें हम बात करें तो 17th ग्रुप का सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ग्रुप का मतलब जब आप नीचे बढ़ रहे हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। याद रखिएगा, मैंने बता दूं, पहले मैं बता दूं, मान लो सपोज करिए पीरियोडिक टेबल हो गया, तो आप अगर नीचे आ रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें, ठीक है ना, ये घटती है, और पीरियड में जब आप जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसमें देखें सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किधर है, देखें, यानी क्वेश्चन है इसमें अरेंज किया है पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, सल्फर और सिलिका, ठीक है, ये पूरा मतलब मिक्सअप कर दिया है इसने। तो अगर हम ट्रिक के हिसाब से देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रखा है, यानी जो बिल्कुल राइट साइड में होगा एलिमेंट उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा पीरियोडिक टेबल में, ओके। आप नीचे जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी ना, और अगर पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो भी आयोनाइजेशन एनर्जी घट रही है। इसलिए इसमें अगर ऑप्शन के हिसाब से लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, तो ऑप्शन के हिसाब से जाएं तो देखिए क्लोरीन, फिर सल्फर, सिलिका, सोडियम एंड पोटेशियम, सबसे राइट साइड में कौन है, क्लोरीन है, ठीक है। आप अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें सल्फर, सिलिका, सोडियम एंड पोटेशियम, इसलिए कौन सही है, ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नंबर 9, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग, बोला है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इसमें, तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, क्लोरीन एंड सल्फर। तो इसमें क्लोरीन हो गया सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके, क्योंकि आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, इधर जाएंगे तो बढ़ेगी। सबसे राइट साइड में कौन है, क्लोरीन है। नाउ अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड, तो सबसे लेफ्ट साइड में कौन है, क्लोरीन, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, तो आप देख लें इसमें सबसे जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करें तो कार्बन, बोरॉन, फ्लोरीन एंड लिथियम। तो इसमें जो अगर हम बात करें लिथियम है, इसकी सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ये इस साइड में है, ठीक है ना। यानी पीरियोडिक टेबल में आप जितना देखें, पीरियोडिक टेबल में आप जितना लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर आप इधर जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और अगर आप उल्टा आ रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, ठीक है ना। तो अब देख लें, ये कॉन्सेप्ट का आप यूज करें। विच इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सबसे लेफ्ट में कौन सा है, लिथियम है, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लिथियम। क्वेश्चन नंबर 11, एलिमेंट बिलोंगिंग टू पीरियड थर्ड एंड ग्रुप 2, बोला है कि उसका जो पीरियड है वो कितना है, थर्ड पीरियड है, और ग्रुप जो है वो कितना है, उसका सेकेंड ग्रुप है। अब बोल रहा है कि उसमें बताओ कि कितना वैलेंस शेल होंगे और कितने उसके इलेक्ट्रॉन होंगे। पीरियड जो होता है ना, पीरियड दैट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ सेल्स एंड ग्रुप दैट रिप्रेजेंट वैलेंस सेल, ओके।
तो अब इसमें देखें आप पीरियड कितने के बराबर है, पीरियड कितना हो गया इसका 3rd, तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए 3, और वैलेंस सेल कितने के बराबर हो जाएगा 2। सो राइट आंसर विल बी 3 सेल्स एंड 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। डन। ये आपको याद रखना होगा, थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं, समझ भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज ओवर द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज, बोला आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ती है। फर्स्ट, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, एटॉमिक रेडियस एंड न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। ये सही है। आप जब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो ना, तो जो साइज है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, छोटा, जिससे कि उसका न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ना वो बढ़ने लगता है, जिससे कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द एलिमेंट हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स, यानी सबसे कम किस में है, आप बताएं इसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो फ्लोरीन, सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। सो फ्रॉम दैट अगर आप देखें जो लिथियम होगा ना, उसके सबसे कम एटॉमिक नंबर है, तो उसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन सेल्स हैं वो बहुत ही कम होंगे। सो दिस विल बी द राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, एलिमेंट विथ लोअर न्यूक्लियर चार्ज इज मैग्नीशियम, लिथियम, बेरिलियम एंड पोटेशियम। सो न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम लिथियम पे होगा। किस पे होगा, लिथियम पे। बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम किस पे सबसे कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज, इट इज लीस्ट ऑन बेरिलियम। क्लियर। न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम किस में होगा आपका, बेरिलियम पे। आगे बढ़ रहे हैं हम। 15, एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसके पास है, तो वो हो गया आपका हीलियम के पास। ओके। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका स्मॉलर साइज की वजह से, किसकी वजह से, स्मॉलर साइज हो गया, यानी इसका साइज बहुत ही छोटा है, और हायर न्यूक्लियर चार्ज और अट्रैक्शन, इसकी वजह से इसके पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17, यानी सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है कौन सा हो गया, उसमें हो गया फ्लोरीन। अब इसमें भी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी स्मॉलर साइज की वजह से, स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, डन। क्लियर। सो क्वेश्चन 16 is done. Now we'll go for question number 17. See, question 17 is a group 1A element are called alkali. Group first A elements are called alkali metals. मतलब इनको आप alkali metals क्यों बोलते हैं, देखिए फर्स्ट, when treated with water their hydroxide produce acidic solution, नहीं, गलत है। combined with water their oxide produce acidic solution, नहीं है। oxides and hydroxide produce alkaline solution when treated with water, this is right option. Okay, question number 18, which is smaller, बोला सोडियम प्लस या पोटेशियम प्लस आयन, कौन सा छोटा है, आपको इसका रीजन देना होगा। इसमें जैसे हीलियम, ये हो गया, अगर हम इसको अरेंज करें ग्रुप में, तो आप देखें बोला कि स्मॉलर कौन सा होगा, तो ऑटोमेटिकली ये दिख रहा है कि जितना आप नीचे जाओगे उतना ही नंबर ऑफ सेल्स की वजह से साइज बढ़ता चला जाएगा। अब इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला है, तो ऑब्वियस है कि ये क्या होगा, छोटा होगा। ये तो इजी है। आप जितना पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में अगर आप नीचे जा रहे हो, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो साइज क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो जो पहला सेल आएगा वो छोटा होगा ना, तो ये आई होप ये हो गया आपका क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द नोबल गैस हैव जीरो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज, क्यों, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बिल्कुल खत्म है, क्यों, बिकॉज नोबल गैस हैव same number of electron in their outermost cell, no, because they have stable electronic configuration, yes, ये सही है। all of them have equal number of electrons and proton, ये भी गलत है, all of these गलत है। okay, option B is correct. now question number 20, an element X has atomic number 16, बोला है उसके पास atomic number 16 है, answer the following question. first, स्टेट द पीरियड एंड द ग्रुप टू विच इट बिलोंग्स, यानी ये किस ग्रुप और पीरियड को बिलोंग करेगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आप देखें, सपोज करो एक्स हो गया,
16 हो गया, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 8 और 6 डन। अब फर्स्ट है स्टेट द पीरियड एंड ग्रुप टू विच इट बिलोंग। अब ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है, देखो आप, ये हो गया आपका जैसे ग्रुप तो हो गया इसका इलेक्ट्रॉन के बराबर ग्रुप 16, पीरियड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 2 3, कौन सा पीरियड हो गया आपका थर्ड, सेल्स के बराबर हो जाएगा, पीरियड ये हमने पहले ही कर लिया है। नेक्स्ट, इज एक्स मेटल और ए नॉन मेटल। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स बताइए मेटल है कि नॉन मेटल, तो इसका लास्ट सेल देखें, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6, यानी इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या हो गया, यानी ये पीरियोडिक टेबल में किधर लाई कर रहा है इस साइड, तो ये क्या हो गया, इट इज अ नॉन मेटल। नेक्स्ट, स्टेट द फॉर्मूला बिटवीन हाइड्रोजन और जेड। बोला कि हाइड्रोजन और जेड में आप बताएं, इसकी देखें इसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी का मतलब 6 हो गया, वैलेंस सेल में इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। ओके, तो अगर हम बात करें, ये सपोज करो एलिमेंट हो गया एक्स, इसको 2 इसकी वैलेंसी हो गई 2, और हाइड्रोजन हो गया इसकी वैलेंसी 1, हम इसका जूता बदल लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं, यानी ये ट्रिक होता है एक ठो, मतलब हमने बताया कि वैलेंसी का आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, तो हो गया H पहले मैं रख रहा हूँ H2X डन। तो ये क्या हो जाएगा आपका H2X हो गया, या अगर Z है तो यहाँ पे आप Z ले लो, कोई दिक्कत नहीं है डन। मान लीजिए अगर यहाँ पे हमने सिंबल जो है ना वो थोड़ा सा वो गलत ले लिया है, ये X होगा, ठीक है ना, X है तो H2X डन। कुल मिला के ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ कंपाउंड इज दिस। ये पूछ रहा है कि किस प्रकार का कंपाउंड है, तो भैया देखो यहाँ ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, कौन सा, ये मेटल और नॉन मेटल में जो दोनों, देखो एक्चुअली दोनों नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी और ये भी, तो नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे विच काइंड ऑफ कंपाउंड, इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडरिंग द सेक्शन। आप थोड़े देखें, ग्रुप दिया है फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, नंबर्स दिया 1 2 13 14 15 16 17, लिथियम ए बी, मैग्नीशियम सी, इसके नीचे डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ऐसा इसने पूरा यहाँ इस टेबल को दे दिया है। आप थोड़े इस टेबल को ध्यान से देख लें, ऐसे एग्जाम्स क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसलिए बोला है कि आप बताएं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। ओके, तो आपको हमने क्या देखा था कि सबसे, ये तो 18 है, यानी ये तो इनर्ट है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना, ये तो जीरो ग्रुप है ना, जीरो ग्रुप, तो इसकी तो बात ही हम यहाँ नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने क्या देखा था, पीरियोडिक टेबल में जितना आप राइट साइड में जा रहे हो वही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसमें देखें सबसे ज़्यादा इस ऑप्शन के हिसाब से DOJA में जे हो गया सबसे राइट साइड में, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हो गया, ठीक है ना। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन जी, बोल रहे हैं कि जी कहाँ है, देखो आप जी 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 ABCDEFG, हाँ ये हो गया। बोला इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं आपको बताने हैं, ठीक ना। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हियर आर इन जी, अच्छा जी हो गया ये, ठीक है ना। देखिए इसका एटॉमिक नंबर दिया है 15, यानी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम इसका कर लें तो 2 8 और 5। तो बोला है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 हो गए, क्योंकि 15 था, यहाँ से हमने ये नंबर डिराइव कर लिया, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया इसका 5। राइट द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड बिटवीन बी एंड एच। बोला है कि बी कहाँ गया आपका, बी हो गया ये, और एच कहाँ गया आपका ये, इनमें आप बताएं कौन सा फॉर्मूला बनेगा। बी मैंने यहाँ लिख लिया और एच मैंने यहाँ लिख लिया। अब बी के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसमें वैलेंसी कितनी आई बी की, 1 आएगी, क्योंकि इसमें वैलेंसी आप देखो लिथियम है 2 1 2 1 आएगा, और एच हो गया आपका ये, यानी यहाँ पे जो वैलेंसी है वो कितनी आएगी, 6 है, 6 का मतलब यहाँ वैलेंसी आएगी 2। ओके, फिर आप इसका वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा B2H डन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी B2H। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और ये बिल्कुल इजी होते हैं, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 23, एन एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड सेकेंड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बोला कि थर्ड पीरियड और सेकेंड ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, आप उसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएं। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके बराबर हो जाएगा ग्रुप के, कितना हो गया 2। वैलेंसी इसकी कितनी हो गई, वैलेंसी देखो यानी ये
2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये दे सकता है इजीली, तो वैलेंसी हो जाएगी +2। मेटल है या नॉन मेटल, ये दे रहा है तो क्या हो जाएगा, ये दे रहा है ना, तो हो जाएगा मेटल, देगा तभी तो इसमें प्लस चार्ज आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, देगा तो मेटल हो गया। नेम द एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या हो जाएगा 282, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर कितना हो गया 12। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए गिवन पीरियड, बोला है लेफ्ट से राइट जाएंगे अगर आप पीरियड में, तो आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए गिवन पीरियड नंबर ऑफ सेल्स। अच्छा, सेल्स की बात कर रहा है कि आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं पीरियड में, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे घटेंगे कांस्टेंट होंगे। तो एक पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट जाओ ना, तो नंबर ऑफ सेल्स सेम होते हैं, वो बढ़ते घटते नहीं हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपके रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ से ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इसी पैटर्न के क्वेश्चन वो पूछता है, इसलिए मैंने आपको ये प्रैक्टिस के फॉर्म में दे दिया है, ताकि इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आई होप आने वाले क्वेश्चंस को आप गलत नहीं करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें, और ऐसी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।